Hello everyone, welcome to Ecoholics YouTube channel. I am Shruti Jha and today indeed we are studying about the agriculture of India. तो चलिए देखते हैं कि एग्रीकल्चर में हम क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं इंडिया के बारे में जो नहीं जानते हैं और क्या हमें जानने की ज़रूरत है. एग्रीकल्चर की डेफिनेशन सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए दैट एग्रीकल्चर इज एन ऑक्यूपेशन ऑफ कल्टिवेटिंग सॉइल, प्रोड्यूसिंग क्रॉप्स एंड सर्टेनली रेजिंग लाइवस्टॉक. ओके, अब एग्रीकल्चर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज इट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू दी 17% ऑफ द जीडीपी एंड 70%, अप्रॉक्स 70% ऑफ द रूरल हाउसहोल्ड्स आर डिपेंडेंट ऑन इंडियन एग्रीकल्चर एंड 3/4 population is also directly or indirectly dependent on agriculture. So overall you can see with these statistics that the agriculture sector is a very important sector in Indian economy. So let's see, it is the practice of growing crops and raising animals to produce food and raw materials for people, because we know कि agriculture के through ऐसे बहुत सारे raw materials हैं which is very important for certain industries. अगर वो raw materials उन industries को नहीं दिए जाएंगे तो हमारे पास finished product जो है वो नहीं आ पाएगा. It also includes the preparation and marketing of these products. अब एग्रीकल्चर जो वर्ड है वो दो वर्ड से मिलके बना है. पहला है आपका एग्री और सेकेंड है आपका कल्चर. तो एग्री का मतलब होता है फील्ड. वी नो दैट एग्रीकल्चर सर्टेनली is done on field only, and cultura, which means cultivation. So agri means field and cultura means cultivation. So the cultivation on the field is referred to as agriculture. Now, over 70% of the rural household depend on agriculture. I told you, agriculture is an important sector of Indian economy as it contributes to the 17% of the total GDP and provides employment to around 58% of the population. You can see that a very significant number of people depend on Indian agriculture for their livelihood. Now, important facts about agricultural production. तो ये बहुत recent का मैंने डेटा ऐड किया है इसमें. 2024 का आपको डेटा देखने को मिलेगा इसमें that the total food grain production is estimated to be 164.7 MT million tons in 2024 to 2025. इतना estimated production जो है वो गवर्नमेंट देख रही है. If we compare to the last year production that is of 2023, तो 2023 में हमारा जो प्रोडक्शन था वो था 155.76 metric ton. India is the biggest exporter of cotton and second largest of rice in the world. Okay, so definitely we can see कि rice और cotton में जो है हम one of the leading exporters हैं. इसके अलावा अगर आप देखो तो milk में भी India is world's largest producer of milk, pulses, spices, cashew nuts and coconuts and tea. तो milk में तो आपको पता है that because of operation फ्लड एंड वाइट रेवोल्यूशन की वजह से जो है हम जो है वो लीडिंग प्रोड्यूसर बन पाए हैं मिल्क में. इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जिंजर, ओकरा, पोटैटोज, अनियंस, ब्रिंजल एटसेट्रा amongst the vegetables. Sikkim is the first state in the world that claimed 100% organic farming. Certainly this question comes in various exams that which state has declared themselves as the first organic state. So the answer is the Sikkim, and India ranks second in the world in agricultural production. तो आप देख सकते हो कि एग्रीकल्चर जो सेक्टर है हमारा वो कितना ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हमारे पास सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं ऑन द ग्लोबल लेवल और हम काफी ज्यादा ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि आपके फूड ग्रेन्स ले लीजिए आप, या फिर आप कोई भी क्रॉप्स ले लीजिए, या फिर आप रिलेटेड टू एग्रीकल्चर देख लीजिए कोई भी प्रोडक्ट्स, वो काफी ज्यादा इंडिया जो है वो एक्सपोर्ट करता है. ओके, और रेवेन्यू भी काफी अर्न करते हैं. ठीक है, नाउ कमिंग टू द लैंड एंड क्लाइमेट. इंडिया में जो आप क्लाइमेट देखते हो, सर्टेनली हम ये नहीं बोल सकते दैट मॉनसून हमको जो है वो का हर बार अच्छा होता है. डेफिनेटली बिकॉज ऑफ अल नीनो वी फेस some challenges also, but most of the time because of the location of India we have a decent monsoon, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर जो है वो हमारा अच्छा रहता है. अब अगर हम लैंड की बात करें तो इंडिया हैज अराउंड 159 million hectares of agricultural land, ranking it among the top in terms of cultivable land globally. ठीक है, अब अगर हम काफी कंट्रीज को अगर देखें, अगर हम मेजर करें तो काफी कंट्रीज में आप देखोगे कि लैंड तो है उनके पास, काफी लैंड है, प्लेन लैंड है उनके पास, बट उनका कल्टीवेबल लैंड नहीं है. तो एग्रीकल्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका जो लैंड है वो कल्टीवेबल होना चाहिए. ठीक है, अगर वो लैंड अगर आपके पास प्लेन है भी और अगर वो बैरन है तो इट इज ऑफ नो यूज फॉर एग्रीकल्चर. ठीक है, तो इसलिए आपका लैंड होना चाहिए,
प्लस कल्टिवेबल भी होना चाहिए. तो both of the factors will contribute to the agricultural production. Now coming to the climate varies from tropical in the south to the temperate in the north. ठीक है, तो टेम्परेट टेम्परेचर रहता है, टेम्परेट क्लाइमेट रहता है हमारा नॉर्थ में. अगर हम साउथ की बात करें तो हमें ट्रॉपिकल क्लाइमेट देखने को मिलता है. ठीक है. The monsoon season from June to September is crucial for agriculture as it provides about 70 to 80% of the annual rainfall. Certainly, whatever months we are having monsoon from June to September, तो approx 4-5 months का जो है हमको monsoon देखने को मिलता है. तो around 80% of the rainfall will come from that monsoon only, and the 20% rest of the 20 to 30% will come from the retreating monsoon. So soil types, we have alluvial soil in India. We can see black soil, we can see red and laterite one also. तो जो एलुवियल सॉइल होती है उसमें आपका वीट हो गया, राइस हो गया, दीज क्रॉप्स कैन बी डेवलप्ड. एंड इफ वी टॉक अबाउट ब्लैक सॉइल, तो कॉटन इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम पर्सपेक्टिव ऑफ ब्लैक सॉइल. जैसे ब्लैक सॉइल का नाम हम सुनते हैं तो हमको सबसे पहले क्रॉप जो माइंड में आती है वो कॉटन आती है. ओके, उसके बाद अगर आप लेटराइट सॉइल की बात करो तो टी, कॉफी, रबर, ये सारे जो क्रॉप्स होती हैं वो आप लेटराइट सॉइल में ग्रो कर सकते हो. फाइन. नाउ की क्रॉप्स, तो सर्टेनली हर तरह की क्रॉप्स आपको इंडिया में देखने को मिलती हैं. कुछ लेवल पे उन क्रॉप्स का जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा है, और हर एक एरिया का आप देखो तो कुछ ना कुछ एक इनोवेटिव या फिर एक अलग सी ऑथेंटिसिटी होती है. आप ये नहीं बोल सकते हो कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है आपका क्रॉप प्रोडक्शन का ऑल ओवर द पैन इंडिया, बिकॉज सर्टेनली द क्लाइमेट, द मॉइस्चर, द लैंड, द रिलीफ स्ट्रक्चर ऑफ पर्टिकुलर स्टेट, ये काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं जो एग्रीकल्चर को डिटरमाइन करने में हेल्प करते हैं. तो एवरीथिंग लाइक अगर हम साउदर्न स्टेट्स की बात करें तो वहाँ पे आपको लेटराइट सॉइल देखने को मिलती है, तो वहाँ पे कॉफ़ी आप ले लो, रबर ले लो, आप कोकोनट ले लो, आप स्पाइसेस ले लो. ठीक है, ये ज़्यादा देखने को मिलते हैं. वहीं अगर हम आप सेंट्रल इंडिया की बात करो, हम मध्य प्रदेश की बात करें, अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ पे आपको राइस, वीट, पल्सेस राजस्थान में आपको देखने को मिलती हैं. ठीक है, उत्तर प्रदेश की बात करो तो उत्तर प्रदेश इज ऑल्सो लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ वीट एज वेल. तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं जो कि डिटरमाइन करते हैं कि एग्रीकल्चरल क्रॉप्स जो हैं वो उनका मॉइस्चर कैसा है, उनको किस तरीके का टेम्परेचर चाहिए, कितनी ह्यूमिडिटी होना चाहिए. तो वो ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है उस स्टेट का उस पर डिपेंड करता है. तो द फूड ग्रेन्स फर्स्ट वी आर कमिंग, राइस एंड व्हीट आर द स्टेपल ग्रेन्स एंड इंडियाज प्राइमरी फूड क्रॉप्स. प्राइमरी रीजन्स इंक्लूडिंग पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश, मैंने आपको बताया. एंड सर्टेनली द ग्रीन रेवोल्यूशन led to the massive production of rice and wheat, because if we talk about the green revolution which occurred in the year 1960s, the main aspect or the main contribution of that revolution was in these two crops only. Okay, rice and wheat along with the barley was also involved. Now pulses. Major pulses include chickpeas, pigeon peas and lentils, largely grown in Madhya Pradesh, Uttar Pradesh and Maharashtra. Then if we talk about the cash crops, which are cotton, sugarcane and oil seeds, example mustard and soya bean, primarily grown in Gujarat, Maharashtra and Andhra Pradesh. Horticulture products, India produces a large volume of fruits such as mangoes, bananas and citrus fruits and vegetables, potatoes, onion and tomatoes. तो देखिए ये क्रॉप्स क्यों इंपॉर्टेंट है. अगर आपको लगे कि क्रॉप्स को हमको क्यों पढ़ना है, कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है क्या है, ठीक है हमको पता है, बट इन एग्जाम सर्टेनली यू विल सी कि by the question of a single crop the question comes कि who is the leading producer of wheat, and chronological order is also asked. The different number of crops they will give to you, and different numbers of states also they will give, and they will ask you to arrange them in ascending or descending order. ठीक है, तो you should know that which particular state is famous for producing which particular crop. तो इसीलिए ये crops जो है वो important हो जाती हैं. Now traditional farming practices in India. इंडिया के केस में हम बात कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा आपको देखने को जो मिलती है वो मिलती है प्रिमिटिव फार्मिंग. एज द नेम सजेस्ट, इसमें जो है वो बहुत ऐसे इनपुट्स को यूज़ किया जाता है जो बहुत कॉमन टाइप से चले आ रहे हैं, जैसे कि हो गया, स्टिक्स हो गई. तो ऐसे बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव इनपुट्स का यूज़ नहीं होता है इसमें, बहुत ज़्यादा कोई टेक्नोलॉजिकली एडवांस इनपुट्स का यूज़ नहीं होता है. जो नॉर्मली इनपुट्स यूज़ करे जाते हैं एग्रीकल्चर में, जो काफ़ी चीप भी होते हैं और रेडिली अवेलेबल होते हैं, उनको इसमें यूज़ किया जाता है. ओके,
एंड इट इज ऑल्सो फेमसली नोन एज द स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर और द शिफ्टिंग कल्टिवेशन। ठीक है, तो एक बार जब आपका कल्टिवेशन हो गया, उसके बाद उसको जो है वो लैंड को जो है वो बर्न कर दिया जाता है। उसके बाद अगर आपको लग रहा है, अगर फार्मर को लग रहा है ठीक है हम दोबारा इस पे ग्रो कर सकते हैं, तो उसको कुछ टाइम के लिए छोड़ के फिर वापस उस पे दूसरी क्रॉप को जो है वो उगाया जाता है। ठीक है, प्रिमिटिव फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड इन स्मॉल फार्म्स विथ ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक अ hoe, digging sticks, etc. Farmers depend upon soil fertility, environmental conditions, and other factors like heat for the harvest. This technique is also called the slash and burn farming, where farmers burn the land once the crops have been harvested. ठीक है, तो उसको जो है वो बर्न कर दिया जाता है, जैसा मैंने आपको बताया। Now next is the subsistence farming. ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इंटेंसिव इंस्ट्रूमेंट्स का यूज किया जाता है। ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जिनमें थोड़ा सा आपकी कैपिटल लग सकती है उनको बाय करने में, तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करके, ऐसे इक्विपमेंट का यूज करके आप जो है वो अपना प्रोडक्शन हाई कर सकते हो। कल्टीवेशन टेक्स प्लेस अक्रॉस वाइड एंड लार्ज लैंड एरियाज विद टू टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, वेट एंड ड्राई. Method demands extensive use of chemical fertilizers and different methods of irrigation. ठीक है, तो chemical fertilizers का भी इसमें यूज होता है, और नॉर्मली अगर हम देखें तो अगर प्रिमिटिव फार्मिंग की आप बात करो तो उसमें नेचुरल फर्टिलाइजर्स कहीं ना कहीं यूज करे जाते हैं, बट अगर आप सब्सिस्टेंस की फार्मिंग की बात करो तो इसमें आपको केमिकल फर्टिलाइजर्स देखने को मिलते हैं और डिफरेंट टाइप्स के आपको मेथड देखने मिलेंगे इरिगेशन के। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें तो हमारा नेक्स्ट जो टाइप है वो है कमर्शियल फार्मिंग। एज द नेम सजेस्ट कमर्शियल, तो यहाँ पे जो फार्मर होता है उसका मोटिव होता है मनी मेकिंग, मटेरियलिस्टिक। ठीक है, तो ऐसे वो सरप्लस क्रिएट कर पाए, क्रॉप उनकी प्रोडक्शन काफी हाई हो, तो ऐसे मेथड्स को अपनी फार्मिंग में अपनाते हैं जिनका जो उनका क्रॉप प्रोडक्शन है वो सरप्लस में कन्वर्ट हो जाए। दिस टेक्निक इज अ मॉडर्न डे फार्मिंग मेथड वेयर द फार्मर्स यूज अ वैरायटी ऑफ न्यू एज टूल्स फॉर द सरप्लस प्रॉफिट्स। नेक्स्ट इज द प्लांटेशन फार्मिंग। तो प्लांटेशन क्रॉप्स आपको पता है दैट रबर, कॉफी, ये जो है हमारी प्लांटेशन क्रॉप्स होती हैं, और ऐसी क्रॉप्स जहां पर कल्टीवेशन के थ्रू जो है वो उगाई जाती है वहां पे आपका जो है प्लांटेशन फार्मिंग कम्स इनटू प्लेस। नाउ गवर्नमेंट सपोर्ट एंड पॉलिसीज। MSP. The government sets MSPs for 23 crops, ensuring farmers receive a base price for their produce, mainly benefiting wheat and rice farmers in certain states. ठीक है, MSP का जो मेरा वीडियो है वो आप चैनल पे देख सकते हो, वहां पे मैंने डिटेल में MSP का जो है वो एक्सप्लेनेशन किया है, दैट MSP क्या होता है, कैसे डिसाइड किया जाता है, कौन डिसाइड करता है, और MSP का एग्रीकल्चर पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, हमारे फार्मर्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो वो डिटेल्ड वीडियो आप डेफिनेटली देख लीजिएगा, तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सब्सिडीज, द गवर्नमेंट प्रोवाइड सब्सिडीज ऑन फर्टिलाइजर्स, पावर एंड सीड्स। ठीक है, आपको पता है दैट यूरिया इज हाईली सब्सिडाइज्ड इन इंडिया, तो ऐसे प्रोडक्ट्स जो गवर्नमेंट को लग रहा है कि एग्रीकल्चर में बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है या फिर काफी ज्यादा एक्सटेंसिव अमाउंट में यूज करे जा रहे हैं और फार्मर्स उनको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं या फिर फार्मर्स के लिए दिक्कत होती है, तो ऐसे प्रोडक्ट्स को जो है वो सब्सिडाइज कर दिया जाता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये एक क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है, इंडिया फ्लैगशिप क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम एम्ड एट प्रोवाइडिंग इंश्योरेंस कवरेज एंड फाइनेंशियल सपोर्ट टू फार्मर्स इन केस ऑफ क्रॉप फेलियर। ठीक है, तो अगर आपकी क्रॉप फेल कर गई तो जो भी उसका अमाउंट होगा, जो आपको लॉस हुआ है, फार्मर को लॉस हुआ है, वो प्राइस आपको गवर्नमेंट की तरफ से दे दिया जाएगा। पीएम किसान स्कीम, इसमें जो है वो एवरी ईयर जो है ₹6,000 एज अ फिक्स्ड इनकम जो है वो फार्मर्स को दी जाएगी, बिकॉज यू नो दैट एग्रीकल्चर डज नॉट प्रोवाइड फिक्स्ड इनकम टू यू, फिक्स्ड इनकम टू द फार्मर्स, और बहुत अनप्रेडिक्टेबल एक इकोनॉमिक सेक्टर है, अनप्रेडिक्टेबल लाइवलीहुड का जरिया है, तो इसलिए गवर्नमेंट जो है पीएम किसान से इंश्योर कर रही है कि जो हमारे फार्मर्स हैं उनको फिक्स्ड इनकम दी जाए। एक nominal amount है, but still definitely it will be helpful for them. Now coming to the challenges in Indian agriculture. बहुत सारे ऐसे न्यूमरस नंबर ऑफ चैलेंजेस हैं जो हमको इंडियन एग्रीकल्चर की फील्ड में देखने को मिलते हैं, एंड सर्टेनली if we have the chance to overcome those challenges, we can definitely improve the productivity in agriculture, and certainly which will lead to improvement in the societal or economic condition of farmers as well. So first is fragmented land holdings. आपको पता है हमारे यहाँ जो farmers हैं, they are not very much इकोनॉमिक वायबल इन दैट कॉन्टेक्स्ट कि वो काफी मेजर पोर्शन ऑफ लैंड जो है वो बाय कर सके। उनके पास काफी छोटे छोटे टुकड़ों में लैंड होता है, और वो छोटे छोटे टुकड़ों में जब फार्मिंग करते हैं तो जो यील्ड होती है, क्रॉप यील्ड होती है, जो क्रॉप प्रोडक्शन होता है, वो इतना हाई नहीं हो पाता है जो उनको उतना आउटपुट दे पाए कि वो बड़ा लैंड खरीद सके। ठीक है, इसलिए वो कंपेल हो जाते हैं जितना भी छोटा उनके पास लैंड होता है उसी में फर्दर फार्मिंग करने के लिए, कि जो लाइवलीहुड उनकी चल रही है वो चलती रहे। तो फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स भी एक बहुत बड़ा इशू है। ठीक है,
है। देन अगर हम सेकेंड पॉइंट देखें तो क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी, ये तो मैंने आपको बताया कि भाई क्लाइमेट vulnerability is very common in India because certainly we have after effects of El Nino as well which interferes in the Indian monsoon, ठीक है, हमारा इंडियन मानसून अफेक्ट होता है उससे, और अगर मानसून अफेक्ट होगा, रेनफॉल अफेक्ट होगा तो डायरेक्टली हमारा एग्रीकल्चर भी अफेक्ट होगा, ठीक है। थर्ड इज द मार्केट एक्सेस, प्रोडक्शन हो गया, क्रॉप्स जो है वो हार्वेस्ट कर ली गई, बट अगर मार्केट का एक्सेस नहीं है फार्मर्स के पास तो उनको कैसे प्रॉफिट मिलेगा, उनकी इनकम कैसे होगी। So indeed, the market access is also one of the challenge in Indian agriculture. Then fourth one is the low productivity. Certainly, ये भी कहीं ना कहीं interrelated है कि आज जो सिचुएशन हो गई है हमारे लैंड्स की ड्यू टू एक्सटेंसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, ड्यू टू एक्सटेंसिव यूज ऑफ सच प्रोडक्ट्स विच लीड टू द सॉइल डिटीरियोरेशन, सॉइल डिग्रेडेशन, तो डेफिनेटली आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो अफेक्ट होती है। फिर उसमें और चार चांद लगा देता है हमारा मॉनसून, अगर वो खराब हो गया तो फिर और ही ज्यादा दिक्कत वाली बात हो जाती है। देन फिफ्थ पॉइंट इज सॉइल इरोजन। डेफिनेटली यही मैंने आपको पॉइंट बताया कि सॉइल इरोजन ले लीजिए, आप सॉइल लीचिंग ले लीजिए, ये जो हमारे इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन आजकल हम डे बाय डे जो है वो स्टडी कर रहे हैं, देख रहे हैं, इसकी कॉन्सिक्वेंसेस सर्टेनली हम फेस भी कर रहे हैं बिकॉज प्रोडक्टिविटी ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर इज ऑल्सो गेटिंग लो एंड सर्टेनली द सॉइल इरोजन इज ऑल्सो वन ऑफ द चैलेंज वी आर फेसिंग। सिक्स्थ पॉइंट इज इनएडिक्वेट स्टोरेज फैसिलिटीज। तो आपको पता है, अगर आपने एमएसपी वाला सेशन देखा होगा, नहीं देखा तो आप प्लीज देख लीजिएगा जाके, तो उसमें मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया है कि क्यों इंडियन गवर्नमेंट जो है वो ज्यादा एमएसपी पे जो है वो परचेजिंग नहीं कर पाती है। दो दे नो द कंडीशन ऑफ इंडियन फार्मर्स, दे नो दैट इंडियन फार्मर्स आर फेसिंग डिस्ट्रेस इन दिस कंडीशन, बट स्टिल दे आर नॉट compelled to buy that much of grains. Why? Because they don't have the storage facilities, the warehouses are not that much big, and also we have the government also have a certain limit to that storage. Okay, तो इसलिए जब storage facility नहीं होगी तो भाई प्रोडक्शन का भी आप क्या करोगे, प्रोडक्शन हो भी गया रखोगे कहाँ, एट द एंड उसको वेस्ट हो जाना है। तो वेस्टेज ना हो तो वो भी एक चैलेंज है कि भाई स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है तो फिर ग्रेन्स जो है हमारे वेस्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब अगर 7 चैलेंज की बात करें तो पुअर अडॉप्शन ऑफ मैकेनाइजेशन। अगर मैं बात करूं टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के बारे में, मैकेनाइज्ड प्रोडक्ट्स के बारे में, आपके पास मशीन आ गई हैं, आप एग्रीकल्चर में आपकी मशीन्स ने काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर दी है, आपका काम आसान कर दिया है फार्मर्स का। बट भाई अगर आपको चलाना नहीं आ रहा, कोई भी मशीन आपको चलानी नहीं आ रही, फार्मर्स को अगर ट्रेनिंग नहीं दी जा रही है, फार्मर्स अवेयर नहीं है कि मशीन को कैसे रन करना है, हार्वेस्टर को कैसे रन करना है, भाई ट्रैक्टर को कैसे चलाना है, ठीक है, कैसे वो हमारी सॉइल प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकता है, तो डेफिनेटली वहां जो अडॉप्शन आप कर रहे हो दैट इज वेरी पुअर और दैट विल लीड टू बी चैलेंज इन एग्रीकल्चर, ठीक है, तो ये भी हमको देखना होगा। देन 8 पॉइंट इज क्रेडिट अवेलेबिलिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए क्रेडिट अवेलेबिलिटी, मैंने आपको बताया है कि फार्मर्स जो हैं उनकी फिक्स्ड इनकम नहीं होती है एग्रीकल्चर से, ठीक है। अब उनकी फिक्स्ड इनकम नहीं होगी तो ऐसा तो नहीं है कि उनको पैसे की जरूरत पड़ती नहीं है, थ्रू आउट द ईयर उनको कभी ना कभी पैसे की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो ऐसे इंस्टीट्यूट्स जैसे भी कि आप नाबार्ड ले लीजिए, ठीक है, ऐसे माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हमारे यहाँ जो है वो काम करते हैं, तो वो लोन देते हैं किनको, फार्मर्स को एट अ वेरी लो इंटरेस्ट रेट, ठीक है, लो इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं। बट स्टिल डिस्पाइट ऑफ एग्जिस्टिंग ऑफ दीज इंस्टीट्यूशंस आवर फार्मर्स आर फेसिंग दैट क्रेडिट अवेलेबिलिटी। उनको लोन्स कभी मिलते हैं कभी नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो अब भाई चलो अगर फार्मर सोचे भी कि ठीक है आज मैंने ये चीज फेस कर ली है, चलो मैं लोन ले लेता हूं, अब नेक्स्ट ईयर मैं देखूंगा क्या करना है, अब वो लोन लेने गए उनको लोन ही नहीं मिला, तो लोन नहीं मिलेगा तो फिर आगे का फ्यूचर की भी जो उनकी प्रैक्टिस है फार्मिंग की वो अफेक्ट होती है। तो हमको ये भी इंश्योर करना होगा कि फार्मर्स अगर लोन लेने पहुंच रहे हैं तो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के थ्रू ये इंश्योर करा जाए कि उनको लोन टाइम पे दिया जाए। फाइन। Now coming to the technological advancements, first is precision agriculture, ठीक है। इसमें देखिए ड्रोन्स की सहायता ली जा रही है इसमें, और काफ़ी ज़्यादा इसको प्रैक्टिस किस तरीके से किया जाता है मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ कि जब कोई भी फील्ड है तो उसमें क्रॉप्स जो है वो लगी हुई हैं और प्रिसिशन एग्रीकल्चर के थ्रू ऐसा किया जाता है कि इरिगेशन जो टेक्निक्स होती हैं वो इस टाइप से उनको इंस्टॉल किया जाता है कि पर क्रॉप के रूट पे एक बहुत ही माइन्यूट तरीके से जो है वो पानी जो है वहाँ पर जाता है और इरीगेशन वहाँ पर प्रैक्टिस होता है। तो ऐसा नहीं है कि पानी का वेस्टेज भी इससे बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि एक एडिक्वेट अमाउंट पे जहाँ पे पानी
की जरूरत है, जिस क्रॉप को पानी की जरूरत है वहीं पर वो पानी जा रहा है। और प्रिसिशन एग्रीकल्चर के वजह से ही ये पॉसिबल हो पाया है कि बहुत प्रिसाइसली, बहुत माइन्यूटली ये मैनेज किया जाता है कि भाई जिस क्रॉप को ज्यादा पानी की जरूरत है, जहां पे ज्यादा आप देख रहे होगे सूखा है, तो वहां पे एग्जैक्टली उसी पोजीशन पे पानी को दिया जाता है। रिमोट सेंसिंग एंड GIS टेक्नोलॉजी आर हेल्पिंग monitor crop health and optimize inputs. Second is automation. Robots and other technologies can perform tasks like sowing, harvesting and milking cows. ठीक है, तो obviously AI की हेल्प तो हम एग्रीकल्चर में ले सकते हैं, और बहुत सारे ऐसे काम जो मैनुअली फार्मर्स करते हैं, उनकी फैमिलीज इन्वॉल्व होती हैं, वो काम जो है अब रोबोट्स कर रहे हैं। सेंसर्स, सॉइल सेंसर्स, टेम्परेचर सेंसर्स एंड अदर डिवाइसेस कैन मेजर फैक्टर्स दैट अफेक्ट क्रॉप ग्रोथ एंड ट्रांसमिट डेटा टू फार्मर्स। ठीक है, अब सॉइल की क्या हेल्थ है, आपके क्रॉप की क्या हेल्थ है ना, आपके जो आप जिस तरीके से ह्यूमिडिटी है आपके एनवायरनमेंट में या आपके सराउंडिंग्स में, वो किस तरीके से आपके क्रॉप को अफेक्ट कर सकती है, ये सारी चीजें जो है वो सेंसर्स फार्मर्स को बता सकती हैं। और एक ऐप भी उनके पास ऐसे होते हैं जिससे ऐप से वो वेदर को भी जज कर सकते हैं कि भाई बारिश होगी, या फिर ऐसा तो नहीं कि भाई कोई ओले वोले गिर जाएं तो हम जो है वो अपनी क्रॉप्स को बचा सकें। तो इस तरीके से सेंसर जो है वो काफी ज्यादा फार्मर्स के लिए हेल्पफुल होते हैं। फिर हम GM क्रॉप्स की अगर बात करें तो आप देखते हो ये जो है वो पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप्स होती हैं। इनको ऐसे आर्टिफिशियली डेवलप किया जाता है कि इनमें कीड़े लगने के, पेस्ट लगने के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं, और उससे हमारी क्रॉप जो है वो खराब नहीं होती हैं। फिर अगर हम इंडोर वर्टिकल फार्मिंग की बात करें तो दिस मेथड इन्वॉल्व्स ग्रोइंग प्रोड्यूस in a closed control environment which can reduce the amount of land space needed। तो हम देखते हैं, हम काफी ज्यादा न्यूज़पेपर्स में भी फोटोज देखते हैं कि ओके साइंटिस्ट ने ऐसा लैब डेवलप किया है जहां पे एक बहुत ही ज्यादा इनोवेटिव वैरायटी ऑफ क्रॉप देखने को मिल रही है। उन्होंने वहां पे वो ग्रो करी है, वो इन्वायरमेंट जो उन्होंने क्रिएट किया है वहां पे, वो सर्टेनली इज हेल्पिंग दैट क्रॉप टू ग्रो। ठीक है, तो वो सपोर्ट कर रहा है उस क्रॉप को ग्रो होने के लिए। तो इंडोर जो वर्टिकल फार्मिंग है आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, और हमारे एग्रीकल्चर के लिए भी ये बेनिफिशियल हो सकती है। नाउ कमिंग टू द सस्टेनेबल एंड क्लाइमेट रेजिलिएंट प्रैक्टिसेस, इसमें सबसे पहले जो आती है वो है ZBNF विच इज जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। इसमें आपको सबसे ज्यादा अगर देखोगे आप तो ये आंध्र प्रदेश में प्रैक्टिस की जाती है। तो एक जीव अमृत करके एक मैन्योर होता है जो ये यूज करते हैं यहाँ पे आंध्र प्रदेश में, ऐसा बोला जा रहा है, या फिर ये इस प्रैक्टिस के थ्रू, इस फार्मिंग के थ्रू ये कोशिश कर रहे हैं कि भाई जो लोकली अवेलेबल इनपुट्स हैं, लोकली अवेलेबल जो मैन्योर है, लोकली अवेलेबल जो हमारे पास फर्टिलाइजर्स हैं, उनको हम यूज करें रादर देन यूजिंग दी वेरी हैवी केमिकल फर्टिलाइजर्स विच कैन अफेक्ट आवर क्रॉप हेल्थ एंड विच कैन ऑल्सो अफेक्ट आवर सॉइल। ओके, now coming to the crop rotation, these are promoted to preserve soil health, increases biodiversity and reduce dependence on a single crop। तो crop rotation के थ्रू एक ईयर कोई एक क्रॉप को ग्रो करा जाता है, दूसरे ईयर दूसरी क्रॉप को ग्रो करा जाता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, एक डाइवर्सिटी भी बनी होती है और हमारे सॉइल के लिए भी काफी अच्छा होता है। इसमें अगर मैं एग्जांपल आपको दूं तो राइस, व्हीट, मूंग एंड मस्टर्ड इन सक्सेशन, तो ये चारों को जो वो एक के बाद एक साल राइस करा, फिर उसके बाद व्हीट, फिर मूंग, इस तरीके से जो है वो क्रॉप रोटेशन प्रैक्टिस किया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं क्लाइमेट रेजिलिएंट वैरायटीज। तो ऐसी क्रॉप्स या फिर ऐसी वैरायटीज क्रॉप्स की जो कि क्लाइमेट रेजिलिएंट होती हैं। ठीक है, उनको मॉइस्चर कितना उस क्लाइमेट में होने वाला है, वो क्लाइमेट को टैकल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कौन सा क्लाइमेट किस क्रॉप के लिए बेनिफिशियल होगा, ऐसी वैरायटीज को डेवलप किया जा रहा है कि जिससे अगर क्लाइमेट अनप्रेडिक्टेबल हो भी रहा है तो भी वो क्रॉप जो है उसका प्रोडक्शन जो है वो अफेक्ट ना हो। The government and research institutions are developing climate resilient crop varieties to withstand drought, floods and salinity. Barley, maize, sorghum, pearl millet, finger millet and several pulses. तो ये जो है वो आपके examples है climate resilient varieties के। Okay, so now you have gone through this topic of agriculture in India. Indeed, a very important topic. So I have brought one question for you all. आप please इसको आंसर करिएगा in the comment section. Arrange the following states in ascending order of rice production in India. वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश एंड पंजाब। तो आपको जो है वो इनको स्टेट्स को असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ राइस प्रोडक्शन। एंड द ऑप्शंस आर ए 23541, B 32541, C 23451 and D 32451. So please guys do answer in the comment section and thank you for watching my session and please stay tuned to the Ecoholics YouTube channel for further more interesting videos regarding Indian economy. Till then पढ़ते रहिए, खुश रहिए, जय हिंद, जय भारत।